خدا کی بڑی خواہش ہے کہ ہم خدا کے زور میں، خدا کی قوت میں، خدا کی قدرت میں ہم بڑھیں، اور یسوع مسیح جو ہمارا منجی ہے، نجات دینے والا ہے، ہم اس میں مضبوط کیے جائیں۔ سب بولیں ہاللویا، ہاللویا، سب بولیں ہاللویا، ہاللویا، اور بولیں ہاللویا، ہاللویا، زور سے بولیں ہاللویا، ہاللویا۔ تالیاں بجائیں گے۔ آج بڑا خاص مضمون خدا نے میرے دل میں رکھا ہے، اور اس مضمون کو میں چاہتا ہوں کہ ہم سب اس کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں۔ خدا کی شروع ہی سے خواہش رہی ہے کہ انسان اس کے ساتھ رہے، اور دیکھیں زندگی کے جتنے بھی منصوبے ہیں، اگر ہم غور کریں تو کتاب مقدس ہمیں یہ بتاتی ہے کہ وہ سارے کے سارے انسان کے چگرد گھومتے ہیں۔ خدا کا سارا منصوبہ، خدا کا سارا خیال، خدا کا سارا دھیان انسان کے چگرد گھومتا ہے۔ اگر آپ غور کریں تو کائنات بنائی ہے، پہلے 5 دن اس نے دنیا کی تمام تر چیزوں کو بنایا، اور چھٹے دن اس کو بنایا جس کے لیے بنایا تھا۔ آمین۔ انسان کے لیے اس نے کائنات بنائی، انسان کے لیے اس نے بڑی بڑی صنعتیں بنائی، سب کچھ کاراگری جو کچھ نظر آ رہا ہے سب کچھ انسان کے لیے بنایا۔ اور جب انسان گر گیا تو خدا نے اپنا منصوبہ انسان پر ظاہر کیا کہ میں تجھے تنہا نہیں چھوڑوں گا، میں تجھے گرا نہیں رہنے دوں گا، میں تجھے بحال کروں گا۔ اور خدا نے بہت سارے نبیوں کو بھیجا، پیغمبروں کو بھیجا، رسولوں کو بھیجا، اور وہ آ کر بھی یہی کرتے رہے کہ خدا کا مشن پورا کرے، خدا کا ارادہ پورا کرے، اور انسان کی بھلائی کے لیے یہ سارے کچھ ہوتا رہا۔ اور آخر کار زمانوں کے آخر میں خدا نے اپنے بیٹے کو بھیجا۔ کیوں بھیجا؟ تاکہ انسان بحال ہو جائے۔ تو انسان کی خدا فکر کرتا ہے، انسان کی خدا پرواہ کرتا ہے۔ بندہ پرواہ کرے پاوے نہ کرے، لیکن خدا پرواہ کرتا ہے۔ آج اپنے دل پر ہاتھ رکھ کے خدا میری پرواہ کرتا ہے، خدا میری پرواہ کرتا ہے، خدا میری پرواہ کرتا ہے۔ خدا میری پرواہ کرتا ہے۔ میں ایسے خدا کے لیے میں ایسے خدا کے لیے دل سے شکر شکر گزار۔ گزار۔ آمین۔ تو وہ جو میری اور آپ کی پرواہ کرتا ہے، فکر کرتا ہے، ہمیں اس کے کلام پر دھیان دینا ہے۔ اور میرا ایمان ہے کہ آج کا کلام آپ کی زندگی میں اس سال کے لیے فتح لائے گا، اگر آپ اس کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں گے۔ اور آج کا ہمارا مضمون ہے خداوند سے لپٹے رہو۔ بولیں خداوند سے لپٹے رہو، ایک بار اور بولیں، خداوند سے لپٹے رہو، ایک بار اور بولیں۔ خداوند سے لپٹے رہو۔ جب لپٹے رہنے کی بات ہے تو ہم ایک حوالہ پڑھتے ہیں اور پھر آگے بات کرتے ہیں۔ یرمیہ نبی کا صحیفہ اس کا 13واں باب پہلی آیت لکھا ہے، خداوند نے مجھے یوں فرمایا، خداوند نے مجھے یوں فرمایا کہ تو جا کر اپنے لیے ایک کتانی کمر بند خرید لے، اور اپنی کمر پر باندھ، پر اسے پانی میں مت بھگو۔ آمین۔ ایک پروگرام ہے جو نبی کو دیا گیا، اور وہ خریداری کا پروگرام تھا۔ خریداری ہم سب جانتے ہیں کہ ہمارا بڑا شوق ہوتا ہے کہ ہم کیا کریں جی، خریداری کریں۔ جی چاہتا ہے نئی نئی چیزیں۔ ان بچوں کو ذرا بلائیں اپنے اپنے پاس، اکیلے اکیلے کرتے ذرا۔ تو ان کو خداوند نے اپنے لوگوں کو جب بھی وسائل دیے تو خدا کے لوگ کیا کرتے رہے ہیں؟ خدا کے لوگ شاپنگ کرتے ہیں۔ شاپنگ کرنا بڑا اچھا لگتا ہے۔ جب پیسے ہوتے ہیں بندہ دل کہنا ہے ایوی لے لو، ایوی لے لو، ایوی لے لو، ایوی لے لو۔ کچھ لوگ ونڈو شاپنگ کرتے ہیں۔
वो बस जाके रेट पूछते हैं, कभी इस दुकान से रेट पूछा, कभी इस दुकान से रेट पूछा, कभी इस दुकान से रेट पूछा। और बात तो दुकानदार को पता नहीं चलता कि ये विंडो शॉपिंग कर रहे हैं, और अगर पता चल जाए तो वो कहते हैं बहन जी, भाई जी, आप हमारा वक्त बर्बाद ना करें, आपने जब लेना होगा आ जाए। इसको विंडो शॉपिंग के लिए नहीं कहा गया, एक खास अमल है जो कहा गया, क्या कि तू जा और जाकर क्या कर, अपने लिए कमर बंद खरीद ले। कमर बंद मुश्किल लफ्ज है, अगर हम इसको बेल्ट कहें ना तो बड़ा आसान है। बेल्ट, कमर बंद, कमर का पटका, बेल्ट। जब हम इफ्शों का खत पढ़ते हैं तो वहां पर बताया गया है, जहां सर से लेके कदमों तक रूहानी हथियारों का जिक्र है, वहां पर एक कमर कस का भी जिक्र है, और दर हकीकत वो कमर बंद है। और वो क्या है? सच्चाई। सच्चाई से अपनी कमर कस कर कहा गया, सुलाम की तैयारी के जूते पहनने हैं, सर पर हेलमेट पहनना है, सीने पर कुछ लेना है, हाथ में कुछ लेना है। और वहां पर स्पेशली बताया गया कि कमर कसने के लिए भी आपको जरूरत है रूहानी तबार से। तो रूहानी लोगों को भी अपनी कमर कसने की जरूरत है, टाइट करने की। खुदा करे कि आज के कलाम से मेरी और आपकी कमर टाइट हो जाए। आमीन आमीन। और देखिए, जितनी मर्जी खूबसूरत पैंट पहनी हो ना, बेल्ट ना पाया हो, भावे पैंट पूरी हो, बेल्ट की अपनी खूबसूरती है। फौजियों को बेल्ट दिए जाते हैं, और हमारा खुदा जो फौजों का रब है, लश्करों का खुदा है, उसका भी एक कमरबंद है, और वो कौन है? मैं और आप है। इस हवाले से हम आगे चलकर देखेंगे कि खुदा कमरबंद किसको कहता है। सबसे पहले हम गौर करें, आप आगे हो जाइए मेहरबानी से, बजाय इसके कि वही आपको आकर के आगे हो जाए, आगे थोड़ा थोड़ा हो जाए। हाँ जी, कमरबंद नबी को कहा गया, और नबी का नाम है यर्मिया। क्या नाम है जी? यर्मिया। क्या नाम है? यर्मिया। यर्मिया नबी, जिसके बारे में कहा जाता है वो आंसू बहाने वाला नबी है, रोने वाला नबी है। खुदा ने उसकी आंखें खोली हुई थी, वो किसी शख्स को देखता, कौम को देखता, तो सारी तस्वीर सामने आ जाती। आज भी जब हम दुनिया पर गौर करते हैं, हम भी कई बार यर्मिया किसी हालत में होते हैं, जी चाहता है रोएं। क्या करें जी? रोएं। पिछले दिनों एक प्रोग्राम चल रहा था, बार बार चल रहा था, और तारक अजीज शो का नलाम घर, बहुत पुरानी बात है, उसको रिपीट किया जा रहा था, और इन दिनों बड़ा वो वायरल हुआ है। और कहा जा रहा था कि दुनिया के अंदर 1.5 करोड़, जिस वक्त उसने बात की थी 1.5 करोड़, लेकिन अब 2 अरब से भी ज्यादा जो है वो मुसलमान है। तो कहा गया कि जी दुनिया के अंदर 1.5 करोड़, ये 81 की दहाई की बात है, 82, 81, उस वक्त जब नलाम घर लगता था, उस वक्त वो कहता है अपने प्रोग्राम के अंदर कि 1.5 करोड़ मुसलमान, और दूसरी तरफ 50,000 यहूदी। कितने? 50,000 यहूदी, इधर 1.5 करोड़, और दुनिया के 80 नोबेल प्राइज, 100 में से 80 नोबेल प्राइज यहूदियों के पास है। तो वो अपने प्रोग्राम में कह रहा था कि बंदा रोए ना तो फिर और क्या करे, कि 1.5 करोड़ कहां और 50,000 कहां, उनके पास इतने नोबेल प्राइज, और जो करोड़ों में हैं इनके पास एक भी नहीं। तो बात करते हैं कि हालतें देखकर आंसू बहाने को जी चाहता है। अगर हम गौर करें
تو ہم مسیحی پاکستان میں اگرچہ تھوڑے ہیں لیکن حالت ایسی ہے کہ اگر تلاش کریں نا ڈاکٹر تو تھوڑے سے، تلاش کریں وکیل تھوڑے سے، تلاش کریں انجینئر تھوڑے سے، بائبل کے پیور ڈاکٹر کوئی ایک پاکستان کے اندر 2، باقی تو ہیں کافی سارے ہیں جنہوں نے ڈاکٹر لکھا ہوا ہے نام، لیکن جو پڑھ کے بڑے ڈاکٹر ہیں۔ اسی طرح سے ہر شعبے کے اندر اگر ہم دیکھیں تو ترقی ہوئی ہے تو بہت ہی تھوڑی سی۔ ہمارے بچوں کا اسکول جانے کو دل نہیں چاہ رہا، ہمارے لوگوں کا کاروبار کرنے کو دل نہیں چاہتا، کام کرنے کو دل نہیں چاہتا، چاہتے ہیں شاپنگ کریں، لیکن اگر کام نہیں کریں گے تو سرمایہ نہیں آئے گا، ضرورتیں نہیں پوری ہوگی۔ تو جس کی ضرورتیں پوری نہ ہو وہ شاپنگ کر سکتا ہے؟ نہیں کر سکتا، وہ تو پھر مانگ کر ہی گزارا کرے گا نا۔ تو ترقی کا راز اس میں ہے کہ جیسے کمر کے ساتھ لپٹا ہوتا ہے، اس طرح سے ایماندار خداوند کے ساتھ کیا کرے جی، لپٹ جائے۔ یہ ترقی کا راز ہے، اور آج کا پیغام اسی لیے دیا جا رہا ہے۔ غور کریں، سٹیپ وائز ہم پڑھتے ہیں اور بڑھتے ہیں۔ کہا گیا کمر بند خرید اور اپنی کمر پر باندھ، پر ایک بات ہے، اسے پانی میں مت بہو۔ اور اگر ہم غور کریں تو ہمیں دنیا میں سے خداوند نے کیا کیا؟ خریدا ہے کہ نہیں خریدا؟ یہ رویا تھی، اور کمر بند یا کپڑا، کوئی بھی چیز، چمڑے کا پٹکا یا بیلٹ خریدنے جاتے ہیں، پیسے دیتے ہیں، لیکن ہمیں جو خریدا گیا، ہمیں سونے چاندی سے نہیں، اس سے، کس کے خون سے؟ یسوع کے بیش قیمت خون سے، بے عیب خون سے قیمت دے کر خریدا گیا۔ اور کس لیے خریدا گیا؟ تاکہ جیسے اس کو کہا گیا کہ تو اپنی کمر سے باندھ، ہم بھی خداوند کے ساتھ ایسے باندھے جائیں، جڑ جائیں، لپٹ جائیں، لپیٹے جائیں۔ پر ایک بات، پانی میں مت بھگو۔ پانی میں مت بھگو سے مراد کیا ہے؟ پانی دنیا ہے، خریدا گیا ہے، ساتھ باندھا گیا ہے، اور اس کے اندر دنیا نہیں ہونی چاہیے۔ آمین۔ ایسا ایماندار خدا کو چاہیے جس میں دنیا نہ ہو۔ وہ دنیا میں تو ہو مگر دنیا اس کے اندر نہ ہو۔ پانی میں مت بھگو، بدی سے کنارہ کر، بچا رہ۔ اور آگے سنیں، کہتا ہے سو میں نے خداوند کے کلام کے موافق ایک کمر بند خرید لیا اور اپنی کمر پر باندھا، اور خداوند کا کلام دوبارہ مجھ پر نازل ہوا۔ خداوند نبی کو کچھ سکھانا چاہتا ہے، لیکن اس نے فرمایا کہ اس کمر بند کو جو تو نے خریدا، جو تیری کمر پر ہے، لے کر اٹھ اور فرات کو جا، یعنی دریائے فرات پر جا، اور وہاں چٹان کے ایک شگاف میں اسے چھپا دے۔ کہتا ہے چنانچہ میں گیا اور اسے فرات کے کنارے چھپا دیا، جیسا خداوند نے مجھے فرمایا تھا میں نے کر دیا۔ وقت گزر گیا، کہتا ہے بہت دنوں کے بعد پھر خداوند مجھ سے ہم کلام ہوا۔ کیا کہتا ہے؟ کہ جسے تو نے میرے حکم سے اس چٹان کے شگاف میں چھپایا تھا، کیا کر، نکال لیا۔ بہت دنوں کے بعد کہتا ہے میں گیا اور جب میں گیا تو لکھا ہے تب میں فرات کو گیا، 7ویں آیت ہے، اور کھودا اور کمر بند کو اس جگہ سے جہاں میں نے اسے گاڑ دیا تھا نکالا، اور نکال کر دیکھا کمر بند کی حالت کیسی ہے۔ کیا لکھا ہے آپ کی بائبل میں؟ کیا ہو گیا جی؟ کمر بند ایسا خراب ہو گیا کہ کسی کام کا کیوں؟
वजह क्या थी, कैसी जगह दबाया गया है? दरिया के किनारे दबाया गया है। और देखें, जब नमी वाली मिट्टी किसी भी चीज को लगती है ना, और चीज उसमें पड़ी रहे, तो वो उसको गाल देती है, खराब कर देती है। चाहे वो चमड़ा हो, चाहे वो सोना हो, चाहे वो लोहा हो, जो भी चीज उस गीली मिट्टी के अंदर रखी जाती है, वो क्या होती है? खराब हो जाती है। ऐसा हुआ, शुरू में कहा गया था पानी में नहीं डुबोना, अब पानी वाली जमीन में दबा दिया गया, तो क्या हो गया? खराब। दुनिया में जब हमें छोड़ दिया जाता है, तो कलाम में लिखा है, कायम को खुदा ने कहा था कि तू जमीन पर क्या हो जाएगा? आवारा। और एक और लफ्ज है, खाना खराब। दुनिया में लोग खराब हो जाते हैं। दुनिया में क्या है? दुनिया में नाच रंग है। दुनिया में क्या है? नशेबाजी है। दुनिया में क्या है? तकब्बर है, हसद है, कीना है, बुग़्ज़ है, लालच है, हवस है, हिरस है। दुनिया में क्या है? दुनिया में हलाकत है, खाना खराब होगा, आवारा होगा। तो ये लिखा है, मैंने उसको निकाला और ऐसा था कि किसी काम का ना हो। परेशान हो गया होगा। लिखा है, तब खुदावंद का कलाम मुझ पर नाज़िल हुआ। तो ये तो सारा कुछ एक सीन था जो मैंने तुझे दिखाया। असल बात अब मैं करता हूं। कहता है कि इसी तरह मैं यहूदा के घमंड और यरूशलेम के बड़े गुरूर को क्या करूंगा? आप गौर करें, अगर खुदा फरिश्ते को जब वो गुनाह करता है, खुदा से दूर चला जाता है, उसके घमंड को तोड़ सकता है, तो इंसान के घमंड को भी क्या करता है? तोड़ सकता है। और यहां बात हो रही है यहूदा की, यहां बात हो रही है इस्राएल की। कहता है, इसी तरह मैं यहूदा के घमंड और यरूशलेम के बड़े गुरूर को नेस्त करूंगा। क्योंकि यहूदा घमंडी हो गया। इन्हीं को दाऊद ने क्या कहा था? वो घमंडियां नाल रखदा ना झूठिया ना रखदा, घमंडियां कोल ओ ना जांदा, ना झूठिया ना रखदा। घमंड को तोड़ता है खुदा, गुरूर को तोड़ता है खुदा। घमंड करके शैतान जो है खुदा से दूर हो गया। फरिश्ता था, शैतान बन गया। इंसान भी जब घमंड करता है, गुरूर करता है, तो फिर खुदा से क्या हो जाता है? ये हालत, घमंड। इस साल में खुदा चाहता है हमने घमंडी नहीं बनना। खुदा चाहता है हमने गुरूर नहीं करना। खुदा चाहता है हम बर्बाद ना हो जाएं। खुदा चाहता है हम हलाक ना हो जाएं। खुदा चाहता है कि हम फायदामंद बन जाएं। आमीन। तो लिखा है, ये शरीर लोग जो मेरा कलाम सुनने से इनकार करते हैं और अपने ही दिल की सख्ती के पैरों होते और गैर मबूदों के तालब होते और उनकी इबादत करते और उनको पूजते हैं, वो इस कमरबंद की मानिद होंगे जो किसी काम का। यहूदा को तशबीह दी गई क्योंकि जैसा कमरबंद इंसान की कमर से लिपटा रहता है, गौर से सुने, खुदावंद कहता है वैसा ही मैंने इस्राएल के तमाम घराने और यहूदा के तमाम घराने को क्या किया? लिया कि मुझसे क्या रहे जी? लिपटे रहते हैं। मैंने यहूदा के सारे खानदान को लिया, इस्राएल के सारे खानदान को लिया कि मुझसे लिपटे रहे, ताकि वो मेरे लोग हों और उनके सबब से मेरा नाम हो और मेरी सताइश की जाए और मेरा जलाल हो। पर उन्होंने ना सुना। बर्बादी की हालत, तबाही की हालत, या
खुदावन से ना लिपटना, उससे ना लिपटे रहने की हालत ये है कि लोगों ने चंद एक बातों को अपना करदार बना लिया, और वो बातें हैं 10वीं आयत के अंदर। या हम आसान अल्फाज में देखेंगे कि लोग क्यों खुदा से लिपटे नहीं रहते, किन वजूहात की बिना पर, क्या हर्डल्स हैं, क्या बैरियर हैं, क्या रुकावटें हैं, क्या रुकावटें हैं कि लोग खुदा से लिपटे नहीं रहते। दिल तो बड़ा चाहता है, पूछ के वेख लो, हाँ जी खुदा ना प्यार करते बड़ा दिल करता है, लेकिन कर नहीं सकते। क्यों, क्या वजह है? तो वजह देखिए, नंबर 1 लिखा है, ये शरीर लोग जो मेरा कलाम सुनने से क्या करते हैं, इनकार। तो कलाम को ना सुनना सबसे बड़ी रुकावट है हमारे खुदावन के साथ लिपटे रहने में। पहली रुकावट क्या है? कलाम को ना सुनना। और सारी बातें सुनना मगर कलाम ना सुनना। याद रखें, कलाम जिंदगी देता है, कलाम बचाता है, कलाम छुड़ाता है। दाऊद जैसा बंदा कहता है, तेरा कलाम मेरे कदमों के लिए चिराग और राह के लिए रोशनी। अगर आपको याद हो तो पहले द्वार को मैंने ये कहा था कि हमें अहद बांधना है खुदा के साथ, और उसमें पहला अहद ये था कि हम खुदा के कलाम को पढ़ेंगे। इस साल में क्या करेंगे? पढ़ेंगे। पता नहीं 16 दिन, आज 17 तारीख है ना, 16 दिन आपने कितना पढ़ा? रेगुलर पढ़ा? नहीं पढ़ा? अगर नहीं पढ़ा, एक बार फिर इंतबाह है कि आप कलाम को क्या करें? पढ़ें। क्योंकि सुनना क्या है, जब हम कलाम को पढ़ते हैं तो खुदा हमसे बोलता है और फिर हम सुनते हैं। आमीन। पढ़ेंगे तो सुनेंगे। अगर आप पढ़े लिखे नहीं है कोई बात नहीं, जो पढ़े लिखे उनसे कहे हमें पढ़ के सुनाओ जी। और मैं ये कहूंगा, कलाम नहीं ना खोलेंगे तो आसमान नहीं खुलेगा। कलाम खोलेंगे, आसमान खुलेगा। खुदा की आवाज को सुनना, पर ये सुनते नहीं, इसलिए ऐसी हालत है कि खराब हो गए, इस्तेमाल के लायक नहीं रहे, खुदा की मर्जी को पूरा नहीं कर रहे। दूसरी वजह, अपने ही दिल की सख्ती के पैरों होते, यानी दिल की सख्ती एक बड़ी रुकावट है। कई लोग कलाम ही नहीं सुनते, पर कई सुन के अनसुनी कर, कई सुन सुन कर क्या हो जाते हैं, दिल इतना सख्त है, ना वो खुदा की सुनते हैं, ना वो माँ बाप की सुनते हैं, ना वो भाइयों की सुनते हैं, ना वो बहनों की सुनते हैं, ना वो दोस्तों की सुनते हैं, ना पादरी की सुनते हैं, ना एल्डर की सुनते हैं। दिल सख्त हो गया। दाऊद ने एक मौका पर कहा, खुदावन तुम मुझसे संगीन दिल लेकर मुझे गोश्तीन दिल अता। कौन सा दिल जी? गोश्तीन। बस दिल सख्त, सख्त दिल। मैलिन हिकी अपनी किताब के अंदर कहती है, दिल सख्त हो जाए तो दिलों की सख्ती के बायस क्या होता है? उसने कहा बहुत सारी बीमारियां हमें आ दबाती हैं, जिनमें से उसने चंद एक का नाम लिखा अपनी किताब के अंदर। आइंदा नस्लों की बरकत में वो कहती है कि ये जो जोड़ों की बीमारियां होती है ना, ये दिलों की सख्ती के बायस होती है। किसी को माफ ना करना, जिਵੇਂ जिਵੇਂ ऐसी गांठ बनने, फिर खुदा भी क्या करता है, सजा के तौर पर हमारे अज़ा के अंदर गांठें बांधना शुरू करता है। दिल की सख्ती एक दूसरी रुकावट। तीसरी रुकावट क्या है बड़ी? वो क्या है? गैर मबूदों के तालब होना। खुदा को छोड़कर किन मबूदों के तालब होना? गैर का लफ्ज ही गैर है, जो अपना ना हो वो गैर है। हमारा मबूद हमारा है, और जो नहीं हमारा मबूद वो क्या है? गैर है। गैरां दे नाल बन दे कौल करार हैं जेड़े।
आगे किए ओना दे दुख सदा बदल गए बथेरे। उर्दू में लिखा हुआ है ज़बूर में कि गैर मबूदों के पीछे भागने वालों का गम क्या होगा, बढ़ जाएगा। तो असल में क्या है, लिपटे नहीं रहते क्योंकि कलाम नहीं सुनते, दिल सख्त हो गया है, गैर मबूदों के तालब हैं। 3 वजूहात बोले, कौन कौन सी? कौन कौन सी? पहली क्या है? ना सुनना, पहली क्या है? कलाम ना सुनना, कलाम ना सुनना। दूसरी दिल सख्त होना। तीसरी गैर मबूदों के तालब होना, चाहे वो पैसा है, चाहे वो मिट्टी का कोई बुत है, चाहे वो कब्र है, कोई ढेरी है, कोई मंदिर है, कुछ भी है, खुदा को छोड़कर उसका तालब होना। किसी भी चीज को खुदा से बढ़कर दर्जा देना, वो हमारा मबूद बन जाए, चाहे वो आपका काम ही क्यों नहीं, गैर मबूद, चाहे वो आपका रिश्तेदार ही क्यों नहीं। और अक्सर कहा जाता है कि खुदा का वक्त किसको दो जी? खुदा। और खुदा ने सबसे पहले जो हुक्म दिया था वो ये था, मेरे हुजूर तू गैर मबूदों को ना मानना। बनी यहूदा को और यहूदा के कबीले को और इस्राएल के कबीले को उसने यही कहा था ना, 10 हुक्म दिए, मेरे हुजूर तू गैर मबूदों को ना मानना। पर इन्होंने मानना शुरू कर दिया। इसलिए खुदा कहता है जैसे बेल्ट खराब हो गया है, ऐसे ही ये भी खराब हो गए। और जैसे बेल्ट किसी काम का नहीं रहा, मैं इनके घमंड को ऐसा तोड़ूंगा, गुरूर को ऐसा तोड़ूंगा कि अब ये भी किसी काम के नहीं रहे। खुदा ऐसे लोगों को इंतबाह करता है। और आज अगर हम में से कोई ऐसा है कि जो खुदावंद के साथ लिपटा हुआ नहीं है, तो उसको ये 3 बातें याद रखनी चाहिए कि ये है बैरियर, ये रुकावटें हैं। पहली क्या है? कलाम ना सुनना। दूसरी क्या है? दिल की सख्ती। तीसरा क्या है? गैर मबूदों के ताल्लुक होना। और चौथा है गैर मबूदों की इबादत करना, तालब होना भी, और फिर क्या करना? इबादत करना। यही लिखा है। 5वां क्या है? उनकी पूजा करना, तालब होना, इबादत करना, पूजा करना। और कहता है वो इस कमरबंद की मालिक होंगे जो किसी काम का जेड़े नहीं सुनते, जिनका दिल सख्त हो गया, जो गैर मबूदों के तालब हो गए, जो उनकी इबादत करते हैं, जो उनकी पूजा करते हैं। खुदा कहता है ये उस बेल्ट की मालिक है जो किसी काम का नहीं। खुदावंद से लिपटे रहो क्योंकि खुदावंद की यही आरज़ू है। अब हम देखते हैं किस तरह से हम लिपट सकते हैं खुदा के साथ। इन्हीं का उलट कर लेंगे। ये 5 बातें इन्हीं का उलट। अगर हम वो करना शुरू कर दें इन कामों को छोड़कर, जहां नहीं है वहां हाँ करें, और जहां हाँ है वहां यहाँ करें। काम में लिखा है तुम्हारा कलाम हाँ की जगह और ना की जगह ना। जो इससे ज्यादा है यही जो इससे ज्यादा है क्या है? वो बदी है। तुम्हारा कलाम हाँ की जगह हाँ और ना की जगह हाँ। अगर आप लिपटना चाहते हैं खुदावंद के साथ, तो फिर आज अहद बांधना होगा एक बार फिर कि मैं तेरे कलाम को सुनूंगा। आमीन। क्योंकि सुनने वालों में फल पैदा होता है, तो 30 गुना 60 गुना और 100 गुना। फिर दूसरा काम आज आप ये करेंगे कि दिल की सख्ती को खत्म करके नरम दिल हो जाए। क्या हो जाएंगे? नरम दिल। कलाम में एक हवाला मुझे बड़ा अच्छा लगता है, लिखा है वैसा ही मिजाज रखो जैसा मसीह यीशु का था। वो दिल का क्या था? फरोतन, नरम, हलीम। कई बार ना हलीम होता है, लेकिन वो हलीम नहीं होता, वो तो बयानी होता है।
اور بریانی بھی کہو جی بندے مار بریانی شولہ مار بریانی جیسے وہ تباہی کرتی ہے نا ایسے بندہ بھی تباہ تو حلیم فروتن دل کا نرم مزاج اور رویہ اچھا سافٹ مزاج ہے زندگی کے اندر نرم مزاجی کیسی ہوتی ہے ہر بندہ آکھے جی ایتے بندہ انجے جویں برفی ایتے بندہ انجے جویں نا حلیم جیسے حلیم کو کھانے کو دل کرتا ہے وہ اس کو بھی لوگ چاہتے ہیں پیار کرتے ہیں حلیم زمین کے کیا ہوں گے وارث ہوں گے تو خداوند سے لپٹنے کی کا دوسرا اصول کیا ہے نرم دل ہونا حلیم ہونا گوشتین دل ہونا اور تیسرا میجر فیکٹر جو ہے وہ ہے اپنے خدا کے طالب ہونا کس کے اپنے خدا کی اس پر کمپرومائز نہیں میرا خدا ہے آمین کوئی کمپرومائز نہیں کوئی سانو باؤں پھڑ کے ادھر کھڑے کوئی باؤں پھڑ کے ادھر کھڑے ہم اس کو کہے بیٹھا ہے ادھر سخت رویہ دکھانے کی ضرورت ہے دکھائیں شیطان آپ کو کھینچے آپ سخت ہو ابلیس کا ڈٹ کر مقابلہ کرو تو لکھا ہے ابلیس تم سے بھاگ جائے کوئی ماں کوئی بہن کوئی بھائی یسوع نے کہا جو مجھ سے بڑھ کر اپنی ماں کو باپ کو پیار کرتا ہے وہ میرے لائق ہے یہاں پر کوئی کمپرومائز نہیں اگر ماں کہتی ہے دھاگا باندھ لو پیچھے ہٹ